السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کو سال 2022 کی بہت بہت مبارکباد۔ میرا یہ پیغام ان والدین کے لیے ہے جو اپنے بچوں کی تعلیم کے بارے میں بہت زیادہ سیریس ہیں، اور ان نوجوان طالب علموں یا اسٹوڈنٹس کے لیے جو اپنے اپنے ایریاز میں بہت زیادہ ترقی کرنا چاہتے ہیں یا گرو کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ترقی یا تو گروتھ کے لیے ہو سکتی ہے، پیسہ کمانے کے لیے ہو سکتی ہے یا سیلف سیٹسفیکشن کے لیے۔ تینوں ہی چیزیں میرے خیال ہے انسان کی بنیادی فطرت کا حصہ ہیں۔ دوستو، میرا نام سہیل ہے۔ میں ایک میکینیکل انجینئر ہوں اور کافی عرصے سے آئل اینڈ گیس کے شعبے میں وابستہ ہوں۔ پاکستان میں موجود 6 بڑی ملٹی نیشنل اور نیشنل کمپنیوں میں کام کرنے کا تجربہ ہے میرا۔ گزشتہ کچھ سالوں میں اپنے کام کے دوران اور اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہوئے میں نے کچھ سیکھا جو میں والدین اور ینگ اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، جو کہ ان کی کامیابی میں بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے میرے خیال سے۔ 80s اور 90s میں جب ہم لوگوں نے پڑھنا شروع کیا تو ہم لوگوں پر یہی پریشر ہوتا تھا کہ ڈاکٹر بننا ہے یا انجینئر بننا ہے۔ ہماری جنریشن کے کچھ لوگ ڈاکٹرز بن گئے، کچھ انجینئرز بن گئے اور باقی سائنٹسٹ وغیرہ بن گئے۔ کچھ خاص ڈائریکشن وغیرہ نہیں تھی ہمارے پاس، کسی کے پاس بھی نہیں تھی، کوئی فیوچر کا ویژن نہیں تھا موسٹ لوگوں کے پاس کہ کیا کرنا ہے۔ جس کی بنیادی وجہ میرے خیال سے یہی تھی کہ موسٹلی لوگ جو ہے وہ متوسط گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے، جاب حاصل کر کے کچھ پیسے کمانا چاہتے تھے، اپنا فیوچر بنانا چاہتے تھے، اور اس کے لیے لوگوں کے پاس شاید یہی راستہ تھا۔ میرے خیال سے گزشتہ 20 برسوں میں حالات بہت زیادہ تبدیل ہو چکے ہیں۔ مارکیٹ میں بہت سارے ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، لیکن شاید جاب کی اویلیبلٹی پہلے جیسی نہیں رہی۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ اس کی بنیادی وجہ ملک کی اکنامیکل کنڈیشنز ہیں شاید۔ آپ لوگ بھی موسٹ پروبیبلی ایسا ہی سوچتے ہوں گے، بہت سارے لوگ ایسا سوچتے ہیں۔ لیکن اگر آپ بغور مشاہدہ کریں تو صرف یہ ایک وجہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جاب یا بزنس میں کامیابی کا تعلق صرف ڈگری سے نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ڈائریکٹ تعلق کوالٹی آف سروسز سے ہے، یا کہ جس کو کہا جاتا ہے ویلیو ایڈیشن سے، کہ آپ کسی بھی انڈیویجول کے لیے، کسی کمپنی کے لیے، کسی بھی ادارے کے لیے آپ کیا ویلیو ایڈ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آپ کو پے کر رہا ہے بزنس کی مد میں یا ایز این امپلائر، تو وہ آپ اس کے لیے کیا ریٹرن میں کر سکتے ہو۔ مثال کے طور پر ہم اپنے گھر کے کام کے لیے کسی پلمبر، الیکٹریشین یا مستری وغیرہ کو ہائر کرتے ہیں، تو ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں گے کہ وہ کس کام کی قابل ہے، یا اس کی کوالٹی وغیرہ کیا ہے، اس کی آؤٹ پٹ کیا ہے۔ ہمیں اس چیز میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا کہ اس کا ٹائٹل کیا ہے، اس نے ڈپلومہ کیا ہوا ہے یا نہیں، وہ انجینئر ہے یا نہیں ہے۔ ہمیں صرف یہ انٹرسٹ ہے کہ جو بھی اس کی جو ٹریڈ سکل ہے، جو کام جس کے لیے ہم اس کو کچھ پیسے دے رہے ہیں، اس کی کوالٹی کیسی ہے۔ اسی طرح ہماری قوم کو آپ جانتے ہیں کرکٹ بہت شوق سے یہ دیکھتی ہے۔ اگر ہم مشاہدہ کریں تو محسوس ہوگا کہ آسٹریلیا کی ٹیم تینوں فارمیٹس میں T20، ٹیسٹ، ODIs میں باقی ٹیموں سے بہت مختلف ہے، بہت آگے ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ خوش قسمتی یا تکا نہیں ہے، بلکہ اگر آپ غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ بچپن کی عمر سے ہی اپنے بچوں پر کام کرتے ہیں یہ لوگ۔ انہیں ایک اچھا ایٹماسفیئر پرووائڈ کیا جاتا ہے، ٹریننگ کی بہترین سہولتیں دی جاتی ہیں، پچز ڈفرینٹ ٹائپ کی ان پر کھلایا جاتا ہے بچوں کو، ان کو ٹریننگ بہت ٹف دی جاتی ہے، اور ان کو پریکٹیکل ایکسپوجر دیا جاتا ہے۔ صرف کرکٹ کی بکس نہیں پڑھائی جاتی ان کو، ٹھیک ہے، تھیوریز نہیں پڑھائی جاتی، یا ان کے جو بڑے کرکٹر گزر چکے ہیں ان کے کارناموں کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ ان کو ہارڈ کور پریکٹیکل کرکٹ بچپن کی عمر سے سکھائی جاتی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یہی بچے بڑے ہو کر ٹیم میں آتے ہیں تو ان کی کھیل میں پرفیکشن ہوتی ہے، نکھار ہوتا ہے، میچورٹی ہوتی ہے، اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لوگ باقی ٹیموں کے مقابلے میں کافی اچھا پرفارم کر سکتے ہیں، کرتے ہیں، اور وہ چیز ہم سب لوگوں کو نظر آتی ہے۔ اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں اور اس کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں جس کے لیے پروبیبلی یہ آڈیو ریکارڈنگ میں نے شروع کی۔ جاب کے دوران مجھے ایک چیز کی بہت زیادہ حیرت ہوئی، خاص طور پر جب یونائٹیڈ عرب ایمریٹس میں مجھے جانے کا موقع ملا۔
तो वहाँ मैंने देखा कि यूएसए, कनाडा या यूरोप के जो इंजीनियर्स थे या साइंटिस्ट जो थे, उनको पाकिस्तानी इंजीनियर्स के मुकाबले में ज़्यादा अच्छी सैलरीज ऑफर होती थी। ये मेरे लिए बहुत हैरानकुन बात थी और फ्रस्ट्रेटिंग भी था ऑफ कोर्स। लेकिन जब मैंने बगौर मुशाहिदा किया और मैंने एक ऑनेस्टली अपने आप से इस चीज़ को, मैंने उसको सोचा, अपने ऊपर अप्लाई करके देखा कि एक्चुअली वजह क्या है इस चीज़ की, तो जो चीज़ से रिवील हुई वो ये थी कि उनके काम की क्वालिटी हम लोगों से बहुत बेहतर थी, या वो उन कंपनीज के लिए हम लोगों से ज़्यादा वैल्यूएबल थे। ऐसा क्यों था? मुझे ये समझ आया कि इन लोगों का जो चिल्ड्रन एजुकेशन सिस्टम है वो पाकिस्तान से बहुत बेहतर था, और शायद आज भी ऐसा ही है। मोस्टली केसेस में हमारे बच्चों को जो भी पढ़ाया जाता है उसकी एप्लीकेशन नहीं सिखाई जाती। हमारे ज़माने में भी ऐसा होता था और आज भी ऐसा ही हो रहा है मेरे ख्याल से। बहुत सारे स्कूल्स में ऐसा ही हो रहा है। ये ऐसा ही है जैसे हम साइकिल सवारी और कार चलाने की बातें तो करते रहें, मगर साइकिल चलाकर ना देखें और ना ही कार में बैठकर, तो मतलब हमने तो कुछ नहीं सीखा। अगर मैं यंग स्टूडेंट्स से बात करूं जो कि साइंस पढ़ रहे हैं या प्री इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, या मैं भी जो इंजीनियरिंग के पहले 1-2 साल में हैं, अगर मैं उनसे क्वेश्चन करूं कि कैलकुलस, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन को कहाँ अप्लाई करोगे, या एरिया अंडर कर्व को कैसे इस्तेमाल करोगे, तो शायद बहुत से लोग ना जानते हों, जबकि वो इनसे रिलेटेड बहुत सारे सवालात आराम से हल कर सकते हैं। हमारे इंजीनियर्स या साइंटिस्ट जब मार्केट में आएँ तो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग में बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं, बहुत सारे मसाइल का शिकार होते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त गुजारने के बाद कुछ सीख पाते हैं और तरक्की का वो सफ़र नहीं तय कर पाते जिसका वो ख्वाब लेकर इस फील्ड में आए थे। बहुत सारे केसेस में दूसरे ममालिक के इंजीनियर या साइंटिस्ट सैलरी और पोजीशन में उनसे आगे निकल जाते हैं। यही हाल बिजनेस का है। अगर हम सिर्फ इंडियन इंटरप्रेन्योर्स को कंपेयर करें पाकिस्तानी इंटरप्रेन्योर्स के साथ, तो इंडिया के इंटरप्रेन्योर्स की तादाद हम लोगों से बहुत ज़्यादा है। लेट्स कीप हेटेड अपार्ट, हमें तो प्रैक्टिकल बात करनी है ना। वालदेन और यंग स्टूडेंट से गुजारिश है कि यंग एज से अपने आप को एक आदत डालें, एक आदत अपनाएं। उसका नाम है एप्लीकेशन एंड परफेक्शन। जो कुछ भी पढ़ें उसको बार बार अप्लाई करने की कोशिश करें। जो कॉन्सेप्ट भी लें उसको प्रैक्टिकल करके देखें, इससे उनकी काम के मुतल्लिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। जी, तो हम बात कर रहे थे कि मार्केट में कौन सी चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है। मार्केट में देखें उसी चीज़ की वैल्यू है या वर्थ है जो कि कोई फ़ायदा पहुंचा सके, किसी को वैल्यू ऐड कर सके सिस्टम के अंदर, सोसाइटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन में या इंडिविजुअल को। जो प्रोडक्ट या जो सर्विस वैल्यू ऐड नहीं कर सकती, वो सोसाइटी के लिए या एंड यूज़र के लिए बेकार है, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ख़ासतौर पर जो लोग साइंस या इंजीनियरिंग में तालीम हासिल करना चाहते हैं या कैरियर बनाना चाहते हैं, बगैर एप्लीकेशन और प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के, उनके लिए आज के कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में ग्रो करना बहुत मुश्किल है, या सर्वाइव करना भी मुश्किल है मेरे ख्याल से। एप्लीकेशन प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए बेहतरीन वक्त कौन सा होता है आपके ख्याल से? हम में से बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि शायद इसके लिए बेहतरीन वक्त यूनिवर्सिटी का टाइम है, या फिर जब हम जॉब शुरू करते हैं एज अ ट्रेनी इंजीनियर, एज अ ट्रेनी साइंटिस्ट और मैनेजमेंट ट्रेनी, तो शायद वो वक्त सबसे बेहतर है। जबकि मेरा ये ख्याल है कि इसके लिए बेहतरीन वक्त स्कूल का टाइम है, और उसी वक्त से हमें प्रैक्टिकल चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, और हमें अपने जो साइंटिफिक या मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको अप्लाई करना आना चाहिए। और बेसिकली यही वो बुनियादी फ़र्क है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, जो कि हमारा और इंटरनेशनल सोसाइटीज़ के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स का है। तो जिस स्कूल में भी आप बच्चों को पढ़ाएं, इस चीज़ पर गौर कीजिए कि जो भी उनको पढ़ाया जा रहा है उसको एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल की फॉर्म में सिखाया जा रहा है या नहीं सिखाया जा रहा। यकीन कीजिए आज की मार्केट में भी उन लोगों की बहुत ज़रूरत है जो प्रैक्टिकली कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ये और फिर आम में फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। एप्लीकेशन या प्रैक्टिकल बहुत आसान है। अगर आप वालिदैन हैं तो अपने बच्चों की मॉडल्स की मदद से रहनुमाई कर सकते हैं।
बहुत सारे लोग साइंटिफिक और मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं, अवेलेबल होते हैं। जो अवेलेबल ना हो वो बनाए जा सकते हैं। आज के दौर में मेरा ख्याल है ये चीज़ बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और अगर आप यंग स्टूडेंट्स हैं तो जो कुछ भी पढ़ रहे हैं उसका मॉडल बनाने की कोशिश कीजिए, उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। अगर आप मॉडल कम्प्लीटली ना भी बना पाएँ तो कम से कम इतना ज़रूर समझ लेंगे कि इंजीनियरिंग या साइंस को मैंने अप्लाई कैसे करना है। क्योंकि बिलाखिर आपने जॉब मार्केट या बिजनेस मार्केट में यही तो करना है, इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई ही तो करना है। तो अगर आपको ये चीज़ पहले से ही आती है मार्केट में एंटर होने से, तो फिर जाहिर है आपका कंपेटिटिव एडवांटेज होगा बाकी लोगों पर। फॉर एग्जांपल, मैं अगर पावर ट्रांसमिशन की बात करूं तो मुझे इस चीज़ की मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि केमिकल एनर्जी क्या चीज़ है, उसको बॉयलर में मैंने कैसे इस्तेमाल करना है, बॉयलर में मैंने फायर कैसे करना है, उसकी जो केमिकल एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करना है, और उससे फिर हीट को मैंने वाटर में कैसे ट्रांसफ़र करना है, और वाटर को जब मैंने स्टीम में कन्वर्ट कर लिया तो उस स्टीम को मैंने स्टीम इंजन या स्टीम टरबाइन में कैसे लेकर जाना है। फिर आगे जो टरबाइन या इंजन जिस भी ड्रिवन इक्विपमेंट के साथ कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल जनरेटर है, तो उसको कैसे कनेक्ट करना है, उससे मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी या बिजली की तवानाई कैसे हासिल करनी है। याद रहे कि ये सारी चीज़ें हम इक्वेशंस या थ्योरीज या इवन न्यूमेरिकल्स में बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज ना होने की वजह से सब्जेक्ट पर मुकम्मल ग्रिप नहीं कर पाते, और ज़ाहिर इसी की वजह से हम वो एक एडवांटेज लूज़ कर देते हैं जो कि इंटरनेशनल जो लोग हैं मोस्टली जिनका मैं तज़किरा कर रहा था वो गेन कर जाते हैं। सो प्लीज़ रिमेंबर, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टुडे। इसके बगैर ग्रो करना मेरे ख्याल से इट इज़ क्लोज टू इम्पॉसिबल। और एक और चीज़ याद रखिए कि क्वालिटी इज़ मच बेटर देन द क्वांटिटी। आप थोड़ा करें लेकिन जो भी करें उसकी आपको मुकम्मल अंडरस्टैंडिंग हो। आई होप आई वॉज एबल टू कम्युनिकेट द मैसेज टू यूथ, टू पेरेंट्स फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। अगर ये कुछ फैमिलीज़ को भी मेरा पैगाम मिल जाता है तो बिलीव मी मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है, और मैं थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन फील करूँगा कि कुछ फैमिलीज़ को मैं एक ऐसा मैसेज कम्युनिकेट कर पाया जो कि मेरे ख्याल से उनके फ्यूचर के लिए अच्छा साबित हो सकता है। 2022 के लिए अगेन आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, गुड लक्स, और प्लीज़ लेट मी नो इफ़ आई कैन बी ऑफ एनी हेल्प फॉर यू इन दिस रिगार्ड। थैंक यू।